خبر شامل کریں گے ENN نیوز نمائندہ افتخار احمد خان کی۔ ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين صدق اللہ۔ جو بزرگان تھے وہ آنے والے نوجوانوں کا راستہ روکتے تھے اور نئے صحافیوں کا ایکسس وہاں پہ نہیں تھا۔ سلیم پروانہ صاحب نے وہاں پہ اپوزیشن کا رول ادا کر کے اپنے اقتدار کی قربانی دے کے آج کے موجودہ دور کے 98% صحافیوں کو نام دیا، پہچان دی، شخصیت دی، اور مظفر آباد پریس کلب کی چھتری کے نیچے ان لوگوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، اور اس کے بعد بدقسمتی سے اصولوں کی پاسداری نہ رکھ سکے اور مفادات پہ انہوں نے کمپرومائز کر کے سلیم صاحب سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور سلیم صاحب یہ کہتے رہے کہ اگر میں نے بے اصول لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے تو مجھے اس فورم پہ یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، میں اپنی منزل پہ، اپنی چیئر پہ، اپنے ادارے میں بیٹھا ہوں۔ تو اس جگہ پہ آنے سے پہلے جناب صدر عتیق احمد خان صاحب، ہم سینٹرل پریس کلب جو اولڈ سیکریٹری بلڈنگ اس کے ساتھ جنم ویلی ہوٹل جہاں پہ آج 15 انصر میرزادہ صاحب کا، وہاں پہ میجر ذاکر صاحب کی بلڈنگ تھی، اس کی ایک بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن اپنے ہمارے 5 نکات ہیں: اسلام کی سربلندی اور ذمہ دارانہ صحافت کا فروغ، استحکام پاکستان، کشمیر کی آزادی اور مظلوم کی آواز۔ ان 5 نکات کے اوپر ہم جو اپنے 24 آورس میں خون بند کر رہے ہیں، ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کردار ہم یہ سننا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی سیٹ اپ کے اندر آپ تحریک آزادی کشمیر کا فیوچر کیا جانتے ہیں، کشمیریوں کا فیوچر کیا ہوگا، پاکستان کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جس سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں صحافت کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، جیسے گندا پانی دینا، والا روڈ کا پکا نہ ہونا، بنیادی جو انسانی ضروریات ہیں ان سے محروم کرنے سے کشمیریوں کے اندر ایک نفر ہونے کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جذبہ نہیں کہہ سکتے، وہ نفر ہو رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ تو ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں گے اور قوم کو یہ پیغام دینا چاہیں گے، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کی اس طرف جاری تحریک آزادی میں عملی کردار ادا کرنے والی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو پیغام دینا چاہیں گے، آپ کی طرف سے حوصلہ دینا چاہیں گے کہ اس مایوسی کے دور میں بھی کوئی امید کی کرن ہے، تو اس کرن کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی، پاکستان کے استحکام کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک آزادی کشمیر کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی آپ کی انشاءاللہ آپ کی تاریخی خدمات ہیں، جہاں پہ ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا بلا مشروط تعاون کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مظفر آباد پریس کلب آپ کی پشت پہ ہوگا، آپ کے نظر کا دفاع کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز بنے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، شیخ صاحب کا بہت شکریہ، ارون صاحب کا بہت شکریہ، تمام دوستوں کا شکریہ، سجاد عباسی صاحب کا بہت شکریہ کہ ان سے اکثر فیس بک میں ملاقات ہوتی رہتی ہے، میں کہتا رہتا ہوں جی کہ کبھی تشریف بھی لائیں، تو یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں۔ باقی آپ پریس کے دوستوں کا شکریہ، باقی جن دوستوں کا میں نام نہیں لے سکتا ہمارے، کیونکہ ہم قائد موضوع کو سننا چاہتے ہیں تو ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا سردار عتیق احمد خان صاحب کہ وہ قوم کی اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم عمر صاحب اور مظفر آباد پریس کلب کے اراکین، محفل اور تم تعزیت کے لیے حاضر ہوئے تھے، بنیادی طور پہ آپ نے جو کلمات خیر گئی اس کے لیے میں گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پروان صاحب کے درجات کو بلند کرے اور ان کی جو صحافت کے لیے اور جو خدمات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے فوری طور پر جو بات جو طلب ہے وہ یاسین ملک صاحب کا مقدمہ ہے کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ انتہائی مشکل میں گرفتار ہیں اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنی بھرپور ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرے اور جتنے دوست ممالک ہیں دور اور نزدیک ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یاسین ملک صاحب
दरवाजे में खड़े हैं, उनके पीछे पूरी एक लाइन है क़यादत की। अगर यासीन मलिक साहब का मुकदमा ठीक तरह न लड़ा गया और यासीन मलिक साहब को हिंदुस्तान के खूनखार अदालती पंजों से न बचाया गया, तो बाकी जो लीडरशिप है वो भी, उसको भी संगीन ख़तरात जो है वो लाहक हो चुके हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से यासीन मलिक साहब और उनके सारे साथियों के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार करते हैं और इस मामले में कुछ कर नहीं सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की UN मेंबर स्टेट होनी चाहिए जो मुकदमा बाहर ले जा सकती है, दायर कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में अपना किरदार अदा करें। आज़ाद कश्मीर की सियासी और दीनी जमातें पूरी तरह इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मलिक साहब का मुकदमा जो है वो लड़ा जाए आलमी सतह पर। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है उसमें भी पोल नोयत का मामला जो है वो बल्दियाती इंतखाबात है। इसलिए कि बल्दियाती इंतखाबात को 35-40 साल के बाद होने जा रहे हैं और अभी तक हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया कि ये इंतखाबात नए निज़ाम के तहत होंगे या पुराने निज़ाम के तहत। दोनों सूरतों में वक्त कम है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त की डेट फिक्स की है कि उसके आगे नहीं जा सकते। अगर 22 अगस्त से आगे नहीं जा सकते तो उसका मतलब ये है कि जुलाई में इलेक्शन होने हैं, और अगर जुलाई में इलेक्शन होना है तो फिर जून ख़त्म हो रहा है, दरम्यान में वो टाइम ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन बिला ताख़ीर सियासी जमातों को एतमाद में ले, हुकूमत इस मामले में अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे और इंतखाबी निज़ाम के हवाले से लोगों को आगाह करें ताकि लोग तैयारी कर सकें। इस वक्त बल्दियात के महकमे में भी ऐसे लोग मेरे में नहीं हैं जिनमें से किसी को बल्दियात इंतखाबात में तरीका हो, और सियासत में भी सारे आज़ाद कश्मीर में को 5-10 लोग भी नहीं होंगे तो बल्दियाती निज़ाम में रहे हों और इस वक्त सियासत में कि बिल्कुल एक नया तजुर्बा लोगों के लिए सामने आएगा। इसके लिए सिर्फ इंतज़ामी तैयारी करनी ज़रूरी नहीं है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन बाकी जो लोगों को शोर की आगाही है और लोगों को उससे बाखबर करना है, नए और पुराने निज़ाम का तनाज़ा ख़त्म करना है, वो बेहद ज़रूरी है। तीसरी बात जो है वो बजट से मुतल्लिक़ है। हुकूमत पाकिस्तान ने सारे पाकिस्तान माशी मुश्किल का शिकार है और माली मामला में काफ़ी दिक्कत उसको पाकिस्तान के तमाम सूबों में और मरकज़ में पेश आ रही है। उसका असर आज़ाद कश्मीर पर भी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के मखसूस हालात हैं, इसलिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों के मामले में हुकूमत पाकिस्तान को फराहमदिली का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा भी बहुत इन्वॉल्व नहीं है। चंद अरब रुपए की बात है, तो चंद 100 अरब नहीं है, चंद 1000 अरब नहीं है जो पाकिस्तान के बजट में नफ़े नुकसान का बायस बनते हैं। ये चंद अरब की बात है और इनके लिए ऐसी बदमज़गी पैदा न की जाए। इसी तरह यहाँ के जो देरीना मसाइल हैं जिनका पुराना साहब ने जिक्र किया है, वो मसाइल अपनी जगह जो है उनकी अपनी अहमियत है। वाला रोड हो, मुजफ्फराबाद में पीने का साफ़ पानी हो, माहौलियात का निज़ाम हो, दरिया का पानी कम होने की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इंतज़ामी लाहिरी का नतीजा है, इंतज़ामी कमज़ोरियों का नतीजा है, उन्हें हल करना चाहिए। इस मामले में मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी बुखल का मुजाहरा नहीं हो रहा, इसमें इंतज़ामी कमी और कमज़ोरी की बात है, उसको दूर करना चाहिए। जहाँ तक मौजूदा कश्मीर की तहरीक आज़ादी का ताल्लुक है, मेरा यकीन है कि तहरीक आज़ादी आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतवी अंजाम की तरफ जाएगी, उसको रोका नहीं जा सकता। सियासी कायदीन और क़यादत जो है वो गिरफ़्तार है, नज़रबंद है, जेलों में है, लोग कैद हैं, लेकिन इस सारी बात के बावजूद जो बुनियादी पैमाना है तहरीक को मापने का, वो पैमाना हिंदुस्तान की फ़ौज है। किसी आदमी को ये जानना हो कि तहरीक कमज़ोर हो गई है, ताकतवर है, तो ये मालूम करना चाहिए कि फ़ौज कम हो गई है, उतनी है। अगर हिंदुस्तान की फ़ौज उतनी है, उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तहरीक पूरी ताकत के साथ मौजूद है, क्योंकि जिस दिन तहरीक कमज़ोर होगी उसी दिन जो है वो फ़ौजें वापस जाना शुरू हो जाएंगी। तो अभी तक हिंदुस्तान के 10 लाख के करीब फ़ौज मौजूद है, तो इस बात का सबूत है। हिंदुस्तानी फ़ौज की मौजूदगी बज़ात खुद इस बात का सबूत है कि मकबूजा कश्मीर की तहरीक ताकतवर है और मकबूजा कश्मीर की तहरीक जो है वो मनमंती अंजाम की तरफ बढ़ेगी। राज का और बाकी मुल्की हालात का, तो पाकिस्तान में अदब इस्तेकाम तेज़ी के साथ बढ़ रहा है
बहुत अफसोसनाक अमर है कि मुल्क के दफाई इदारों को जो है वो सोशल मीडिया में तेरे बहस लाया जा रहा है। कोई तजवीज़ यहाँ तक, कोई तनकीद यहाँ तक, कोई एतराज़ यहाँ तक, तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज की बात नहीं है, किसी भी इदारे के बारे में बात की जा सकती है। लेकिन बाकायदा एक मुहिम है, मुखालफाना मुहिम है, जो पाकिस्तान के दफाई इदारों के ख़िलाफ़ शुरू कर दी गई है। इसको रोकने की ज़रूरत है। दुनिया के जिस मुल्क में भी फ़ौज कमज़ोर हुई है वो मुल्क कायम नहीं रह सका। सियासत कमज़ोर होने के बावजूद मुल्क बचे रहे, मईशत कमज़ोर होने के बावजूद मुल्क बचे रहे। अफ़गानिस्तान बचा हुआ है, मईशत बिल्कुल नहीं है, इसके बावजूद बचा हुआ है। लेकिन फ़ौज न होने की वजह से लीबिया का हाल देखें, यमन का हाल देखें, मिस्र का हाल देखें, शाम का हाल देखें, इराक़ का हाल देखें, तो फ़ौजें कमज़ोर हो जाएँ तो फ़ौज बहस आ जाए, ये बहुत ख़तरे की बात है। इसलिए इस बात को और ये जो मसला कश्मीर है ये भी सारी बातों के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को समझना चाहिए कि मसला कश्मीर के खात्मे की कोई तजवीज़ जो है वो संगीन ख़तरे का बायस होगी। इसलिए कि मसला कश्मीर खुदा न खास्ता रोल बैक हो गया तो हिंदुस्तान मुतालबा करेगा कि फ़ौजों की तादाद में कमी करें, क्योंकि मसला कश्मीर ख़त्म हो गया। अगर फ़ौज की तादाद में कमी का मुतालबा हिंदुस्तान का अल्लाह अगर पूरा हो जाए तो उसके नतीजे में वो कहेंगे कि न्यूक्लियर रोल बैक करें, चूँकि अब फ़ौज कमज़ोर हो गई है और न्यूक्लियर का दफा नहीं कर सकती। खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर को रोल बैक करें सारा पाकिस्तान रोल बैक हो जाता है। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि मसला कश्मीर जो है वो दफा के साथ जुड़ा हुआ है, दफा जो है वो न्यूक्लियर के साथ जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर जो है वो पाकिस्तान की सलामती और वजूद के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले में किसी किस्म का कोई रिस्क मोल नहीं लिया जा सकता। तो मैं आप दोस्तों का दिली गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ फरमाना साहब का और हमारे प्रेस क्लब के अरकान का, जो मेहमान दोस्त साथी सियासी और समाजी कारकुन तशरीफ